Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. So बच्चों आज का जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके चैप्टर का नेम है रिप्रेजेंटिंग 3D in 2D. ओके और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे faces, edges and vertices, nets of solids, drawing some shapes, visualizing solid objects and viewing different section of solids. Okay, we have already learned that plane shapes have only two measurements like length and breadth, and therefore they are known as two-dimensional or 2D shapes. All 2D shapes are enclosed by a region also, which is the area of the shape. On the other hand, solid shapes have three measurements like length, breadth and height or depth, and therefore they are known as three-dimensional or 3D shapes. All 3D shapes occupy space also and hence possesses वॉल्यूम. देखिए प्लेन शेप्स के दो मेजरमेंट्स होते हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ होती है. ओके सो इनको हम कहते हैं 2D शेप्स या टू डायमेंशनल्स, और ये एरिया से इनक्लोज होते हैं, रीजन से, जिसे हम एरिया ऑफ द शेप कहते हैं. जबकि जो कुछ सॉलिड शेप्स होते हैं, थ्री मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या हाइट की जगह विड्थ होता है, तो इन्हें हम 3D शेप्स कहते हैं. ओके और 3D शेप्स जो होते हैं ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. ओके और इसीलिए इनका वॉल्यूम भी होता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ 2D एंड 3D शेप्स. Examples of 2D shapes. The examples of 2D shapes are rectangle, triangle, circle, hexagon. ये 2D, two-dimensional shapes हैं. And these are the 3D shapes: cube, cylinder, sphere, and cone. Okay. Now faces, edges, and vertices. Face. The flat part of a solid is called as face. Flat part जो होता है ना solid का, उसे कहते हैं face. Edge, a line where two faces of a solid meet is called as edge. जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं उसे कहते हैं हम एज. एंड वर्टेक्स, ये तो आपको पता होगा, अ कॉर्नर और पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू एजेस ऑफ ए सॉलिड मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स. वर्टेक्स आपका होता है कॉर्नर या पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो एजेस होते हैं ना सॉलिड के, वो मीट करते हैं, वो होता है आपका वर्टेक्स. सो यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए क्यूब के फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. ओके क्यूबॉइड, ये सारे आपके सॉलिड शेप्स हैं, इनकी फेसेस, एजेस और वर्टिसेस आपको दिए गए. ओके सो प्लीज़ you should go through it. Now points to remember: a triangular pyramid whose base and all the three lateral faces are equilateral triangle is called tetrahedron. एक triangular pyramid जिसमें base और तीनों जो lateral faces होते हैं ना वो equilateral triangle होते हैं, तो उसे कहते हैं हम tetrahedron. Okay. Now nets of solids. A net is an arrangement of figures connected at their edges or lying in the same plane which can be folded up to make a solid shape. That is a three-dimensional shape. Okay. Net arrangement होता है figures का जो connected होते हैं अपने edges से, जो same plane पे lie करते हैं, okay, जिनको fold करके हम solid shape बना सकते हैं. Okay. In other words we can say that net is a two-dimensional representation of three-dimensional shapes. और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो net actually two-dimensional representation है 3D shapes का. Okay, let's see the nets of some solid shape. Net of a cube. Okay, देखिए ये ध्यान से देखेंगे आप, ये net का cube है, side, back, side, this is bottom, front and top. तो देखिए आपका क्यूब क्या है, 3D शेप, और ये उसका 2D रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरह से देखिए ये जो है ये आपका क्यूबॉइड का नेट है, राइट. सिलेंडर का नेट देखेंगे, हाइट, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम. ओके एंड नेट ऑफ अ कोन, साइड एंड बेस. नेट ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, सी साइड साइड साइड, और ये बीच में आपका आता है बेस. एंड नेट ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें तो दिस थ्री साइड्स एंड देन बेस. ओके सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं. डाइस इज अ क्यूब with dots on each face. Opposite faces of a dice always have a total of 7 dots on them. So here are two nets to make dice. The numbers inserted in each square indicate the number of dots in that box. Dice आपने देखा होगा जिसे हम लूडो में यूज़ करते हैं, राइट. तो क्या होता है, क्यूब होता है, उसमें डॉट्स होते हैं हर फेस में. तो जो ऑपोजिट फेस होते हैं डाइस के, उनका हमेशा टोटल आता है 7 डॉट्स, लाइक 2 and 5, 3 and 4, 6 and 1, इस तरह से. तो यहाँ पे आपको दो नेट्स बना के दिए गए हैं. ओके सो हमें इसे कंप्लीट करना है. सी ये आपके ब्लैंक है 4, 5, 6. सो आपको क्या करना है, इंसर्ट सूटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स, रिमेंबरिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस शुड बी इक्वल टू 7. ऑपोजिट फेसेस में जो सम होगा कितना आएगा,
आपका 7. ओके, सी ये आपका 6 दिया हुआ, इसका ऑपोजिट ये है, तो 6 + 1 7 होता है, 1 आ गया. ओके, अब आपके पास है देखिए 5 का ऑपोजिट होगा दिस वन, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड 4 का ऑपोजिट होगा दिस वन, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके, और अगर हम इसकी बात करें, ओके नाउ ये आपका है 1, सो 1 के ऑपोजिट दिस, इसके ऑपोजिट होगा ये, तो यहाँ पे आपका आएगा 6. 1 + 6 इज 7. ओके, 2 के ऑपोजिट होगा दिस वन, सो 5 एंड 3 के ऑपोजिट होगा दिस वन इज 4. हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ना उनका सम हमेशा 7 आता है. ओके, सो सिमिलरली आप एग्जाम्पल 2 करेंगे. ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. In the nets of pentagonal and hexagonal pyramids, their base should be pentagon and hexagon respectively, and their lateral faces should be triangular in shape. In the nets of pentagonal and hexagonal prism, their bases should be pentagon and hexagon respectively, and their lateral faces should be rectangular in shape. देखिए, जो आपके नेट्स होते हैं पेंटागनल के या हेक्सागोनल पिरामिड्स के, उनके बेस पेंटागन होने चाहिए और हेक्सागन होने चाहिए, और उनके जो लेटरल फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर होने चाहिए. और पेंटागनल और हेक्सागोनल प्रिज्म के नेट की अगर हम बात करें तो उनके बेसिस शुड बी पेंटागन और हेक्सागन, और उनके लेटरल फेसेस होने चाहिए रेक्टेंगुलर शेप पे. ओके, नाउ एक्सरसाइज 14A, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, vertices and edges of each of the following. देखिए आपको एक टेबल दी गई थी जब आपका चैप्टर शुरुआत हुआ था, उसमें वहाँ पे आपको बताया गया था फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस कितने हैं, तो आपने इन फिगर्स के लिखने हैं फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग सम शेप्स. Here we will learn how to draw 2D shapes of 3D shapes on a graph paper by 2 of the following techniques. अब आपको क्या करना है, 2D ड्राइंग बनानी है आपको 3D शेप्स की, वो भी ग्राफ पेपर पे. तो इसके आपके 2 टेक्निक्स हैं. पहला है आपका ऑब्लिक स्केचेस. नंबर 1, क्यूब. सपोज वी हैव टू ड्रॉ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर, सो वी विल फॉलो द गिवन स्टेप्स. ओके, स्टेप 1, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. हमें एक क्यूब बनाना है, ओके, जिसकी एज है 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, दिस वन 4 सेंटीमीटर जिसकी साइड होगी. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. Step 2, draw an identical square just above to the right. Okay, अब जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया था, जस्ट उसके ऊपर आइडेंटिकल सेम बनाना है. ओके, नाउ जॉइन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स. अब आप कॉर्नर्स को जॉइन कर दीजिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये दोनों भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर. ओके, Step 4, redraw using dotted lines for hidden edges. Okay, फिर आप redraw करेंगे dotted lines use करके for hidden edges. Okay. Number 2, cuboid. Suppose we have to draw a cuboid of length 7 centimeter, breadth 2 centimeter and height 3 centimeter. So we will follow the given steps. अब आपको cuboid बनाना है जिसकी length 7 है centimeter, breadth है 2 centimeter. Step 1, draw a parallelogram of length 7 centimeter and breadth 2 centimeter. देखिए इस तरह से आपने parallelogram draw करना है. Okay. Step 2, draw the vertical edges of 3 centimeter each from every corner. हर कॉर्नर से आपने 3 सेंटीमीटर की क्या करनी है, वर्टिकल एजेस आपने ड्रॉ करने हैं. ओके, लाइक दिस. ओके, नाउ स्टेप 4. स्टेप 3, जॉइन द एजेस, एंड्स ऑफ द एजेस. अब ये जो एंड्स एजेस की आपने इनको क्या करना है, जॉइन कर देना है. एंड स्टेप 4, रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइंस फॉर हिडन एजेस. और फिर से आपने रीड्रॉ करना है, हिडन डॉटेड लाइंस का यूज करना है हिडन एजेस के लिए. Okay, so the first method था. Number 2 is isometric sketches. This type of sketches are drawn on isometric dot sheet. एक sheet आती है जिसको बोलते हैं isometric dot sheet. वहाँ पे ये sketches बनते हैं. An isometric dot sheet divides a paper into small equilateral triangles made up of dots or lines. For example, let's draw a cuboid and cube on the isometric sheets as follows. Okay, अब इस तरह से देखिए cuboid किस तरह से बनाया गया है and this is cube. ये आपकी isometric sheets में बनाया गया है. Okay, now visualizing solid objects. Suppose we have a cardboard box in the shape of a cuboid and several chalk boxes which are cubical in shape and are to be packed in the cardboard box. How many chalk boxes will fit in the cardboard box? Just by looking at the size of boxes, we can estimate the number of chalk boxes that can be fitted in the cardboard box.
माना हमारे पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसका शेप है क्यूबॉइड और उसमें बहुत सारे चॉक बॉक्सेस हैं जो कि क्यूबिकल शेप में हैं और उनको पैक करना है कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो कितने चॉक बॉक्सेस उस कार्डबोर्ड बॉक्स में आएंगे? तो जस्ट हम देखने से हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि इतने ही चॉक बॉक्सेस इसके अंदर फिट हो सकते हैं, राइट? As many as 3 rows of 5 boxes each can be fitted in the cardboard box. Thus 15 chalk boxes can be fitted in this box. This process is said to be visual estimation of space. तो देखिए इसमें कितने आएंगे? 3 rows होंगे 5 boxes के, ओके, जो इसके अंदर फिट हो सकते हैं। दैट मीन्स आपके 15 चॉक बॉक्सेस इसमें फिट हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है विजुअल एस्टिमेशन ऑफ स्पेस, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। 4, ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अगर आप इसमें गेस कीजिए कि कितने क्यूब्स हैं, काउंट अगर आप इसमें करेंगे तो 36 आपके क्यूब्स होंगे। एंड अगर हम इस शेप की बात करें, इसमें अगर आप गेस करेंगे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 क्यूब्स मिलेंगे, ओके। एक्सरसाइज 14B, क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट द शेप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। देखिए कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनकी आपको शेप बतानी है, ओके। तो बहुत ही आसान है, आप खुद से इसे बता सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। In this section, let's see how we can view 3D shapes in different ways. Number 1, by slicing or cutting a 3D shape. Take a loaf of bread. It looks like a cuboid with a square. When it is cut vertically, we get each face as a square piece. We call this face as a cross section of the whole bread vertically. Okay, जैसे कि आपने एक ब्रेड का लोफ लिया, क्यूबॉइड की तरह दिखता है विद अ स्क्वायर। तो जब इसको वर्टिकली कट करते हैं हमें हर फेस मिलता है एज अ स्क्वायर पीस, ओके। सो हम इस पीस को क्या कहते हैं, यानी ये जो फेस इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल ब्रेड वर्टिकली, ओके। If we cut it horizontally, then we will get each face as a rectangle and call the face as cross section of the whole bread horizontally. अगर आप उस ब्रेड को पहले तो हमने वर्टिकली, अब आप उसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, तो जो हर फेस होगा एज अ रेक्टेंगल आपको वो मिलेगा, okay. Now vertical and horizontal cross a section of some 3D shapes, okay. So cuboid है सबसे पहले, इसका vertical section क्या होगा, देखिए अगर आप vertically इसको करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल, और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, ओके। क्यूब की अगर हम बात करें तो दोनों केसेस में वो स्क्वायर ही होगा। सिलेंडर की बात करें, अगर आप इसको वर्टिकली करते हैं तो रेक्टेंगल, एंड अगर आप इसको करेंगे हॉरिजॉन्टली देन सर्कल, ओके। एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म, वर्टिकल सेक्शन होगा ट्रायंगल एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा इसका रेक्टेंगल, ओके। सिमिलरली आपके पास स्फीयर है, सर्कल रहेगा दोनों में, कोन में होगा आपका वर्टिकल सेक्शन ट्रायंगल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल, एंड स्क्वायर पिरामिड आपका वर्टिकल होगा ट्रायंगल एंड आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा स्क्वायर, ओके। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए क्यूबॉइड विल बी स्क्वायर ओनली इफ द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर सेम, अदरवाइज इट विल बी रेक्टेंगल, ओके। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि जो वर्टिकल सेक्शन होता है क्यूबॉइड का वो स्क्वायर होगा अगर ब्रेथ एंड जो हाइट है क्यूबॉइड की वो सेम होगी, सिर्फ उसी केस में, अदरवाइज वो रेक्टेंगल होगा, ओके। नंबर 2 इज बाय लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सर्टेन एंगल्स. Objects look different when they are viewed from different angles. Every solid has 4 different shapes. Views. देखिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अलग अलग एंगल से ना, तो आपको डिफरेंट नजर आएंगे। तो हर सॉलिड के 4 व्यू होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड बैक व्यू। फॉर एग्जाम्पल ये अलमीरा है, टॉप से देखेंगे आपको इस तरह नजर आएगा, फ्रंट से देखेंगे ऐसे नजर आएगा, साइड से देखेंगे आप ऐसे नजर आएगा, और पीछे से देखेंगे ना बैक से तो ऐसे नजर आएगा। मैच बॉक्स को देखिए, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे आप तो उसका वो जो जहाँ पे नेम लिखा होता है आपको नजर आएगा, ये आपको फ्रंट से ऐसा नजर आएगा, फ्रंट से देखेंगे, ये साइड से और ये बैक से। सिमिलरली आपका जो टीन है, ऑयल टीन, ये भी आपको कुछ इसके व्यूज चारों दिए गए कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ओके। नंबर 3 इज बाय शेडो कास्टिंग, ओके। ये शेडो कास्टिंग क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अनदर इंटरेस्टिंग वे टू ऑब्जर्व सेक्शन ऑफ सॉलिड्स इज थ्रू देयर शेडो. The method helps us to see the 2D representation of 3D shapes. Here's how we can do it. Place a solid object in front of a screen. Shine a light on the object from the side opposite to the screen. Observe the shadow of the object on the screen. We will notice that a cone casts a triangular shadow, a cuboid casts a square or rectangular shadow,
अ क्यूब कास्ट अ स्क्वायर शेडो, स्फेयर कास्ट अ सर्कुलर शेडो। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है आपका शेडो का। इसमें क्या होता है कि हमें ये 2D रिप्रेजेंटेशन 3D शेप्स का मिल जाता है। देखिए जैसे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपने रखा स्क्रीन के फ्रंट पे, आपने फिर आप क्या करेंगे, लाइट शाइन करेंगे उसकी स्क्रीन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट साइड में। ओके, अब आपने शेडो देखना है। तो देखिए जो ट्रायंगुलर शेडो है ना, जो कोन है, कोन अगर आप कोन को लेंगे तो उसका शेडो आएगा ट्रायंगुलर, क्यूबॉइड का आएगा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, और क्यूब जो है वो स्क्वायर शेडो कास्ट करता है, स्फीयर जो है वो सर्कुलर शेडो कास्ट करता है। ओके, एक्सरसाइज 14C, what cross section do you get in the following solids when you give a, देखो आपको क्या क्रॉस सेक्शन मिलेगा अगर आप उस पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं। जैसे कि आपका डाइस है, ओके, डाइस आपका क्या होता है, आपका क्यूब होता है, ओके, एंड ऑल साइड्स आपका क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट आपकी तीनों सेम होती है। तो आप इसमें वर्टिकल कट लगाएं चाहे आप हॉरिजॉन्टल कट लगाएं, दोनों ही बार आपको कौन सा शेप मिलेगा, स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी का बताना है। मैच बॉक्स, ब्रिक, मैच बॉक्स क्यूबॉइड शेप का है, ब्रिक आपका क्यूबॉइड शेप का है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा आपको, और जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ओके